कि the best way to write good software is to use unreliable hardware. तो which is very counterintuitive, but एक कंपनी Gremlin के नाम से वो यही करती है. Assalamualaikum. Thank you for coming for the first Imamba Tech Talk happening live. So मैं pick और भी होनी थी, वो delay हो गई, but you know Usman was meant to be the first talk for us. So Usman का मैं quick short introduction करूँगा, but I hope आपने उसके LinkedIn profile देखी हुई. He's actually a PhD like me, but unlike me has done a lot more in terms of development and developing actual products on the US side. ये USC में मेरे same alma mater है, but he did his masters and then went to UIUC for a PhD. उसके बाद से he's been part of Yelp and Mist Systems, which is where he's done the current work. It was also presented at KafkaCon. And उसके बाद एक कंपनी है Fiddler, जो कि AI predictive machine learning area में work करती है. He was part of that inception team. और आजकल he is part of another Netlify company, right? Which he can share later on what he does, but it's a very big pleasure to have him over here. One thing I would also ask, you know, to make sure कि आप लोगों को पता ये हम sessions क्यों कर रहे हैं. I want this to be extremely interactive. Usman itself is an extremely good talker. You know some top conferences, KafkaCon वगैरह AWS reInvent पे इन्होंने present किया हुआ है. He can really explain things very well, but also the purpose is कि यहाँ पे जो technology oriented लोग हैं वो सवाल पूछें, intelligent questions ask करें, and he's open to sort of being interrupted in the middle as and when we need it. So I really hope कि यहाँ पे लोग shy ना हों, openly ask questions. It is a sort of an advanced topic. I've asked him not to be sort of 100 level or 200 level. Assumption है कि Kafka और उस area का आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, and he's going to start from there and go into some very exciting things he's done. So thank you, Usman, for being here. Actually, by the way, another thing I want to appreciate him especially for is he drove from Lahore in the morning and is here just for this. So I really want to appreciate that. Thank you so much. Go ahead, over to you. अस्सलाम वालेकुम यार, थैंक यू सो मच. आप लोग इतने सारे माशाल्लाह लोग यहाँ पे आए. तो इस टॉक के बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि दिस इज़ गोइंग टू बी एज Affan mentioned, it is going to be an application of Kafka. I am going to go over how we solved some of the wireless industry problems, but I'm not interested in telling you about how to solve those Wi-Fi problems, but the focus is on distributed systems, how we used Kafka, और उसके साथ some of the complications that came with it. But ये अगर टॉक का कंटेंट अगर कुछ मिस हो जाता है, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. ये टॉक जो है ये मैंने काफका समिट में प्रेजेंट की हुई है, स्ट्राटा कॉन्फ्रेंसेज में भी. तो यू विल डेफिनेटली फाइंड videos on YouTube about this. So I think it's less important to go through the entire deck. It is more important to have an interactive session like Affan ने बोला. तो अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है तो let me know. We can go into it because like I said, it's more important to have a discussion rather than going through the slides. तो Affan ने इंट्रोडक्शन दे दिया, बट Netlify अभी करंट कंपनी जहाँ मैं काम करता हूँ, it's a unicorn, and we are doing the CI/CD for web applications or websites basically. Significant part of it is hosting, तो उसमें backend काफ़ी involved है. I am a backend person. I have very little experience of front end. तो और उससे पहले Affan ने बताया I've been part of multiple startups. मैंने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में HPC में PhD की थी, बट उसके बाद बाय एक्सीडेंट आई केम टू इंडस्ट्री. मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो थी वो एक फेडरल लैब में थी, वो फेल हो गई थी, सो आई एंडेड अप कमिंग टू इंडस्ट्री. सो दैट वाज द एक्सीडेंट, अदरवाइज आई वुड हैव बीन प्रॉब्ली डूइंग रिसर्च. तो उससे पहले आई जस्ट पुट इन दिस प्लग ओवर देयर. इन द लास्ट 3 to 4 years आई पिक्ड अप रनिंग, बाइकिंग, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स इन जनरल, and I would encourage every one of you to have a life, some passions outside work. So I've mashallah in the last 12 months or so I've done several marathons and ultra marathons.
So it is very healthy, it is extremely good, and it helps with your work as well. Believe me, it does help with your work and your focus and your productivity. So I'd encourage every one of you to participate in it. By the way, यहाँ पे इस्लामाबाद में काफ़ी सारे और लाहौर में भी अब ग्रुप्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं. I can end up talking about running and sports, for the whole day, but let's start with what we are supposed to talk about today. So this is the entire Mist architecture. So I wanted to start with a very high level view of what Mist is, and then we can focus on the aggregation part and Kafka, how we are using Kafka in there. So Mist के अंदर the company started with the inception कि यार we are going to provide Wi-Fi network which is self-driven. कि we have some AI and ML detecting if there are problems with the Wi-Fi. जिस तरह मैं भी यहाँ talk दे रहा हूँ, if the Wi-Fi network is going to go down, let's say in the next 10 minutes or so, तो we want to predict that beforehand ताकि हम उसके बारे में alert कर सकें. So that's basically the big idea. और ये होता किस तरह है कि we have access points deployed, जिस तरह यहाँ पे है, यहाँ access points लगे होंगे, and they are sending telemetry data कि यार कितने लोग connected हैं और क्या signal strengths हैं and all that, which is not very relevant कि वो भेज क्या रही हैं, but the bottom line is कि telemetry data आ रहा है access points से, और ये सारे का सारा data जो है that is buffered in Kafka. और just to give some idea about the scale, these access points are probably somewhere around close to 1 million. और we have several millions of tens of millions of Wi-Fi users, clients जो connected हैं उसके साथ. So we are talking about a lot of data. और just to give some raw numbers, Kafka cluster जो हमारा था उसमें 500 plus partitions थे, और जब ये slide बनी थी तो ये 10 billion messages थे. Now you'll see later in the slides कि ये 10 से 25 हो जाएंगे कुछ slides के बाद ही. तो but the main two pipelines were data telemetry, it goes to Kafka. From Kafka there are two main compute engines. One is Mesos, the other one is Apache Storm. I don't know if you have heard about Apache Storm, क्योंकि आप लोग Flink यूज़ करते हैं. ये 4 साल पुरानी है कहानी, तो इसके अंदर ना हम Storm ही तब यूज़ करते थे. Flink नया था, but it wasn't that mature. तो उसके बाद we do a lot of all the business logic, AI, ML was happening inside Storm, and then a lot of aggregation and basic operations which are not relevant to Wi-Fi, they were happening inside Mesos. And a few points to notice over here was that I don't know if how many of you how many people are familiar with Amazon Spot instances. Okay, so very quickly, Spot instance, Amazon multiple type of contracts offer करता है, reserved, on demand, and the third type is Spot. तो reserved और on demand जो होते हैं, those are generally used by most companies because they are reliable up to a level जब there's an actual outage. Spot contract जो होता है, that is very that's very weird in the sense कि you bid on machines, you get the machine if you are the highest bidder. If someone else is willing to pay more for it, you get outbid. तो वो basically ये है कि बोलियाँ लग रही हैं मशीनों की, वो आपको दे देंगे, कोई और देगा, आपकी plug निकाल के दूसरे को दे देंगे. तो it's very cheap. It's somewhere around 10 to 20% of the on-demand cost. So you end up saving a lot of money. But on the flip side, it is not reliable. It is extremely unreliable. तो हमारा जो data center था, वो total data center का 80% of all production machines were Spot instances. और ये एक्चुअली थोड़ी सी मेरी नीश थी. मैंने इससे पहले भी Yelp में जहाँ काम किया था, तो I moved a significant part of Yelp's infrastructure, which is a review website in not in Pakistan, but probably it's more famous in UK and US. तो वहाँ पे मेरा इस पे काम था, तो I brought that over here as well. तो हमने यहाँ पे भी Spot बड़ी heavily use किया. और इस talk के अंदर we are narrowly going to focus on this aggregator part. And to give some context, aggregation is at the core of what Mist was doing, because हमारे पास data बहुत सारा आता था, telemetry, हमारे सारे AI ML जो algos थे, उनकी input जो थी, that was aggregated data. ठीक है, और वो aggregated data क्या है, we'll talk about in a few minutes.
And we were using Cassandra and Redis for storing states and storing, basically the Cassandra was being used for storing aggregated data meaning कि यार इस 10 मिनट में कितने unique clients थे, इस 10 मिनट में कितनी data download हुआ for every site, for every customer, for every access point. तो different types की aggregations थी which we'll discuss later on. So rough guideline about how this talk is structured. So at the start I'll just give an overview of what is an aggregate. Aggregates हम क्या करते हैं? यार aggregates का source जो था ना, that was his access point. तो access point से data आ रहा है कि यार client 1 2 3 4 connected है, इसका signal strength इतना है, इतना data download कर रहा है. तो that was the raw data. और फिर उसको हम नहीं, इसकी ये एग्रीगेशन जो थी ये इन हाउस बिल्ड किया था, जो लाइव एग्रीगेटर्स है जो आगे मैं बताऊंगा ना. तो स्टोरेज जो थी ना, एग्रीगेट्स होते थे लाइव एग्रीगेटर्स के अंदर, बट द रिजल्ट्स वर स्टोर्ड इनसाइड कैसेंड्रा. सो द कंप्यूट पार्ट वाज इन लाइव एग्रीगेटर्स. तो ब्रीफ ब्रेकडाउन ऑफ द टॉक. स्टार्ट में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर द एग्रीगेट्स, इसके बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ. Then we'll talk about the larger, high level architecture for live aggregators. We were, live aggregator was completely auto scaled. तो उसकी auto scaling कैसी हो रही थी? We'll briefly talk about that as well. And then there is this, we hit a problem while we were scaling, जिसके लिए we had to do this thing called multi-level aggregation, जो end में hopefully हमारे पास time बचेगा तो we'll discuss that. It was a very interesting thing to do. So real-time aggregation is, it's you start with it and everything is working fine. You keep on scaling it, and there is a time, no matter which system you take, whether you start using Kafka or any of the mature systems, there is a day when things are not working. So we had similar trouble as well. We used several other things like Pipeline DB. I don't know if people have heard about it. It's a layer on top of Postgres जो aggregates करती है, query time aggregates करती है. We started using that. It was a huge disaster, and we were getting some very large POs. So we had to come up with live aggregators, a solution in a month or two, because our largest PO from Amazon depended on that thing working. So this was done in a very chaotic manner, but of course there is the thing that I'm presenting over here is a much more sophisticated version, which we kept on working even after that. So this is basically तो आपने भी जो question किया था, this is basically a quick example. I mean, although the messages that we are talking about coming from the AP, they are huge messages. They have so many other things, Wi-Fi related things which are irrelevant. But just to give you some context, ये message one आ रहा है, ये client वो कह रहा है भी client कोई SAM है that is connected, उसने 100 MB डाउनलोड किए हैं and the organization is missed. इसी तरह message 2 आ रहा है, कोई John connected है, and so and so forth. इसी तरह एक, अब ये let's say मेरे घर में भी राउटर लगा हुआ है, उससे एक और मैसेज आ रहा है कि यार अयाना कनेक्टेड है, 60 बाइट्स डाउनलोड किए हैं होम वाईफाई से. तो these are the messages that are coming in. और उसके बाद we wanted to come up with a syntax कि यार everyone does not have to write code for aggregation and all that. We come up with a platform, and then people can just write configuration files to tell us what do they want to do. So basically इस तरह की config files कि grouping columns बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं यार कि I want to group data into 10-minute bins, 1-hour bins, 1-day bins, and then I want to group data based on, I don't know visible है कि नहीं, organization ID. तो basically हम कह रहे हैं यार ये एक organization है, ये एक और organization है, number of distinct clients जो है वो count करो, total data जितना download हुआ है वो count करो, 10 minute की bins में करो, 1 hour की bin में करो. तो that is basically what we are looking at. और aggregations define करने का भी एक तरीका होता था कि you can write these JSONs and you can say यार कि I want to do this, ये लिखा हुआ है count distinct. So I want to do unique count on this column client. So basically जो हमारे पास payload आ रहा है ये वाला, उसके अंदर एक client field होगी, just keep counting the unique values for those clients. तो इस तरह ये हमने JSON के through we parse कि यार what does the actual user want, और उसके बाद live aggregator would
start receiving messages and keeping state in memory. तो in memory ये जिस तरह सारे messages आए हुए हैं तो in memory हमारे पास ये state आती थी. तो इसका breakdown आगे है कि exactly ये किस तरह होता है. तो आपके पास जिस तरह पहला मैसेज आया एंड यू विल हैव कि भाई एक यूनिक क्लाइंट है और 100 बाइट्स जो है डाउनलोड हुए हैं. उसके बाद दिस इज बीइंग पावर्ड बाय आर वी हैव टू बिन थिंग्स बाय ऑर्गेनाइजेशन आईडी एंड 10 मिनट बिन्स. 10 मिनट की चीज़ें एक में ग्रुप करनी है और एग्रीगेट्स डिफाइन करने का इसी तरह जिस तरह मैंने बताया एक ये तरीका था. आपके पास सेकेंड मैसेज आया, आपने एक नई रो ऐड कर दी मेमोरी के अंदर, स्टेट एक्स्ट्रा स्टेट आ गई. तो इसी तरह यू कीप ऑन डूइंग, आपके पास मैसेज आ रहा है, यू कीप ऑन अपडेटिंग द वट एवर रो और एग्रीगेट यू आर टॉकिंग अबाउट. तो इसके अंदर जिस तरह वी हैव 2 टाइम सीरीज, एक ये टाइम सीरीज है, एक ये टाइम सीरीज है. और टाइम सीरीज से मेरा मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की हर 10 मिनट का एक नंबर होगा कि हर 10 मिनट में कितने यूनिक काउंट्स थे. कुछ चीज़ें इसमें some terminologies that I'm going to use and probably you'll see over here is that view is basically a set of tuples के total aggregate जो memory state है that is what we called a view. और grouping columns है कि भाई आप bin किस तरह कर रहे हैं डेटा को. इसी तरह aggregation info is कि what are the different types of aggregates that you are doing. और time series is basically कि हर possible combination of grouping columns के लिए हर 10 मिनट के बाद एक डेटा आ रहा है. तो दैट एंटायर थिंग, दैट लाइन इज बेसिकली अ टाइम सीरीज. कुछ maybe this is Storm and not look at Flink now and even Spark. A lot of these window functions, these definitions are there. Is it to कभी नहीं की? Actually, yes, that's a great question. ये बात है, this goes back to 2016. अब उस वक्त Flink was very new and there was talk about, we spent 3 months evaluating Flink and actually we not only evaluating Flink, we evaluated Flink as well as Storm. Storm के अंदर तो कुछ बहुत obvious problems थी, जिसमें Storm का जो ऑथर था ट्विटर का था, I was in one of the talks, तो मेरी उससे डिस्कशन भी हुई थी. उसके कुछ सॉल्यूशंस निकले थे हेरॉन के अंदर, एक उसका उसको फॉलो किया था उन्होंने. बट स्टॉर्म वाज नॉट वर्किंग. हमारी जो ओरिजिनल बिजनेस लॉजिक में स्टॉर्म यूज़ हो रहा था ना, इट वाज गिविंग अस वेरी हार्ड टाइम. और उसके भी देवर सेवरल रीजंस जिनकी हम डेप्थ में गए थे. सो स्टॉर्म वाज डेफिनेटली ए नो गो. फ्लिंक के अंदर द ओनली प्रॉब्लम वाज कि एट दैट टाइम नो वन वाज यूजिंग इट. और हमारे कंस्ट्रेंट्स कुछ ऐसे थे कि वी हैड टू गेट दिस वर्किंग रिलायबली इन 1 to 2 months. So it was a big risk to take. So at the start we refrained from going down the Flink path. Kafka Streams तो अभी Kafka Streams तो कुछ अर्सा पहले आया. Kafka Streams तो it wasn't even there. Kafka Streams I think if I remember correctly probably 2018 में शायद कुछ आना शुरू हुआ था. 2019-20 में उसने ज़्यादा कोई यूजेज हुई थी. यार that's a great question and my answer to that would be it depends. आप I'll show later in this talk. There are parts of it which there are pros and cons. अगर आप इसको अभी भी Flink पे कन्वर्ट करते हैं ना, तो the benefit would be it is open source, everyone will understand this. The drawback would be कि live aggregator has become a very sophisticated thing in the sense that it auto scales completely. We expose the right knobs to auto scale it. Flink के ऊपर आप अगर let's say Kubernetes पे भी उसको चला रहे हैं ना, तो you will struggle to auto scale it without manual intervention. इस पे we've got into a place because we didn't have a lot of I started alone on this and then I built a team of like 5 or 6 people and we were responsible for Kafka and a lot of other Kafka, Cassandra, Mesos था तब. Kubernetes भी नहीं हमने यूज़ किया था 2016 में. After that we moved to Kubernetes. तो हाँ, मतलब if I were to do it now, it depends on if the company is sensitive to auto scaling, then we'd have to think because I don't know कि उसमें कितनी easily possible होगा Flink. Mesos, the good thing about Mesos was that it would give you a lot of power. वो आपको resource offers देता था. थोड़ी सी बात उसके बारे में होगी जिसमें से you can exactly say कि यार मुझे 2 CPU चाहिए, आधी GB RAM चाहिए.
you cannot really do that in Kubernetes, at least up till now. आप सर्विस लेवल पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल रेप्लिकास की रिक्वायरमेंट्स चेंज करना फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर इज प्रॉब्ली नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट. तो हाई लेवल आर्किटेक्चर इसका ये है कि हमारा कोई डेवलपर है, उसने ये जेसॉन लिखी, ग्रुपिंग कॉलम्स और एग्रीगेशन सारी डिप्लॉय की. वो ज़ूकीपर के अंदर हम स्टेट रखते थे. लाइव एग्रीगेटर का एक स्केजुलर था जो कहता था यार देयर इज समवन हैज डिफाइंड अ न्यू एग्रीगेट और एन एग्रीगेटेड व्यू. स्केजुलर जो था वो मेसोस से बेसिकली बात करता था और उसके बाद वो काफका से मैसेजेस में आते थे एंड विल स्टार्ट एग्रीगेटिंग थिंग्स. उसके बाद वी वर हेवीली डिपेंडेंट ऑन S3 बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी. हमारे पास जितनी स्टेट थी, ये जो व्यूज़ आपको दिखा रहे हैं, दे नीडेड टू बी चेक पॉइंटेड बिकॉज वी वर ऑन स्पॉट एंड वी वुड हैव एक दिन हमारी 800 मशीनें गई थी ओवर द कोर्स ऑफ अ डे, which was 2 times the total data center size. But of course वो एक साथ नहीं गई थी, they went over the course of the entire day. But the best part was that we didn't even know about it. तो मैं जब टॉक प्रिपेयर कर रहा था काफका समिट के लिए, तो हमें उस दिन पता लगा था कि यार एक दिन बीच में आया था जिसमें हमारी 800 मशीनें स्पॉट की टर्मिनेट हुई थी. तो S3 was very critical to this whole puzzle. We were checkpointing entire 2.5 terabytes of state in S3 and सिग्नल इफेक्ट्स के अंदर वी विल राइटिंग और क्रिटिकल स्टैट्स विच वर यूज फॉर ऑपरेशंस, और एग्रीगेट्स थे वो कसांड्रा में राइट होते थे. तो उसके बाद ये कंट्रोलर था विच वाज मेकिंग श्योर कि अब काफका से हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अंदर लेट्स से किसी काफका के पार्टीशन के ऊपर मैसेजेस बढ़ गए हैं बिकॉज हमारा बड़ा सीजनल किस्म का लोड होता था. सुबह को मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं, शाम को कम आ रहे हैं. तो अब कभी कभी ऐसे भी होता था शुरू में कि यार मैसेजेस ज़्यादा आ रहे हैं, कंज्यूम नहीं हो पा रहे हैं, तो स्ट्रीम जो है वो लैग करना शुरू हो जाती थी. वी यूज़ टू कॉल लैग कि क्यू बननी शुरू हो गई है काफका में. एंड यू नो सो दिस कंट्रोलर्स जॉब वाज टू फिगर आउट कि कौन सा व्यू जो है वो कितना पीछे चल रहा है, मतलब कितने पीछे का मैसेज कंज्यूम कर रहा है. यार पार्टीशन होते थे, पार्टीशन बहुत सारी बेसिस पे होते थे. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. स्टार्ट में हमने साइट होती थी, जिस तरह ये ऑफिस है ना एक, तो दिस वी यूज टू कॉल दिस अ साइट. तो पहले हम साइट की बेस पे पार्टीशन करते थे कि एक साइट के सारे मैसेज जो है ना वो एक पार्टीशन पे जाएंगे. अब उसके बाद क्या हुआ कि फेसबुक और अमेजोन हमारे कस्टमर बने, तो उनकी एक ही साइट होती थी ना, आधी ट्रैफिक जो है बेसिकली वहाँ से आ रही होती थी. तो उससे क्या होता था कि एक पार्टीशन जो था वो जो उसकी तबीयत साफ़ हो जाती थी, और बाकी जो 9 पार्टीशन शुरू में 10 से शायद शुरू किया था, 9 पार्टीशन खाली होते थे. तो फिर हमने कहा नहीं यार, अब साइट की बेस पे नहीं, एक्सेस पॉइंट AP की बेस पे करें. तो वो काफ़ी अर्सा चलता रहा. फिर उसके बाद ऐसा होना शुरू हुआ कि हमारी उसमें भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी, क्योंकि हमने एक AP नया निकाला था जिससे 1000 बंदे से ऊपर कनेक्ट हो सकते थे, क्योंकि हम हार्डवेयर हमारा अपना होता था. तो उसके बाद हमने कुछ यूज़ केसेस के लिए, नॉट फॉर एग्रीगेशन बिकॉज एग्रीगेशन के लिए फिर भी वाज अ बिग डील, कुछ यूज़ केसेस के लिए हमने क्लाइंट की बेस पे भी शार्ड किया था कि एक एक्सेस पॉइंट से जिस तरह आप सारे लोग कनेक्टेड हो, तो आपके जो मैक एड्रेसेस हैं उसकी बेस पे शार्ड करो. और उसके बाद यू नो इट वाज वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग वाज बैलेंस्ड, बट यू नो नॉट ऑल यूज केसेस वर बीइंग पार्टीशन्ड बाय क्लाइंट आईडी. सर आईडी की बेस पे अच्छा तो था, लेकिन द कॉम्प्लिकेशन वाज कि जिस तरह मैंने भी बताया कि वी वर एग्रीगेटिंग ऑन साइट लेवल, लेट्स से कि यार इस पूरे ऑफिस के अंदर कितने यूनिक यूजर्स आए हैं. हाँ, अब इस तरह के काम हो सकते थे, लेकिन हमारे पार्टीशन जो थे ना वो एंड में हो गए थे 100-200 के करीब हो गए थे. अब उसका मतलब क्या था कि अगर साइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल पार्टीशंस, एक्सेस पॉइंट और साइट 2 पे एग्रीगेशन हम करते थे, तो उसमें फिर हमें रिडक्शन दोबारा करनी पड़ती थी. तो शुरू में हमने उसको अवॉइड किया, लेकिन इवेंचुअली फिर हमने API के अंदर ये कैपेबिलिटी डाली कि 100 एग्रीगेट स्टोर हुए हुए, 1 फॉर ईच पार्टीशन. तो आप API क्वेरी टाइम के ऊपर उन 100 को जो है कंबाइन करें. ये मैनुअल इंटरवेंशन थी, क्योंकि ये बहुत इनफ्रीक्वेंट होती थी. आई मीन दिस चेंज्ड 1 or 2 times ओवर द कोर्स ऑफ 3 to 4 years. तो इस वजह से देयर वाज नो नीड फॉर डूइंग इट ऑटोमेटिक. सॉरी, काफका का क्या?
यार काफका का क्लस्टर साइज जो था ना बहुत बड़ा हो गया था. अभी मेरे कुछ आगे नंबर्स आएंगे, बट अभी ये 4 साल पुरानी बात है. काफका हमारा था ये R3 8x लार्जेस्ट थे. ये आई थिंक 32 vCPU मशीन्स हैं, और इसके तकरीबन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो 60-70 के करीब ब्रोकर्स थे. NVMe थी, बट ऑफ कोर्स इसके पीछे हमने EBSs लगाई हुई थी. वी वर नॉट यूजिंग SSDs, EBSs लगाई हुई थी. बेसिकली हमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए थी काफका के ब्रोकर्स के लिए. तो लेकिन एक चीज़ मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा कॉन्फ्लुएंट से बात की थी. कॉन्फ्लुएंट अगर आपको पता हो, ये काफका की कोई कंपनी जो है, तो उन्होंने हमें कोई $3 मिलियन का कोट दिया था महीने का. एंड वी वर मेरी टीम में 2 बंदे बेसिकली काम करते थे इस पर. तो हमारे कोई मतलब ज़्यादा नहीं, $4 लाख तकरीबन इंजीनियरिंग कॉस्ट थी हमारी. तो वी डिडंट एंड अप गोइंग देयर, बट इट वाज अ वेरी बिग क्लस्टर इवेंचुअली. स्टार्ट जब हुआ था इट वाज वेरी स्मॉल, लाइक 4-5 आई थिंक 3-4 नोड्स हैं. यार ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है. ये दिस वाज वी स्पेंड सो मच टाइम एट द स्टार्ट ऑन डिस्कसिंग दिस. हमारे जो फाउंडर्स थे, बॉब फ्राइडे CTO था, उसकी तीसरी स्टार्टअप थी. तो एक्चुअली हमारा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, ये स्टार्टअप का डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर था कि वी आर गोइंग टू हैव वन सिंगल क्लाउड. एक हमारे से बड़ा प्रीडिसेसर था मिराकी के नाम से, वो वाईफाई वर्ल्ड में वो $1 बिलियन की कंपनी बिकी थी, बहुत मशहूर हुई थी. अब वो IoT का काम कर रहे हैं, उसके फाउंडर सामसेरा के नाम से, वो बड़ी सक्सेसफुल हो रही है. उन्होंने एक्चुअली जो आप कह रहे थे ना, उन्होंने वो किया था. लेकिन उनको प्रॉब्लम ये आई थी कि वो फिर लार्ज एंटरप्राइज के लिए काम नहीं कर सके थे. लार्ज एंटरप्राइज को चाहिए थे, फॉर एग्जांपल अमेजोन था. अमेजोन कहता था यार कि मुझे अपनी पूरी और की इंफॉर्मेशन जो है ना वो एग्रीगेटेड, जिस तरह एग्रीगेट्स कर रहे हैं, वो एग्रीगेटेड चाहिए. उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि उनको हर वो 5000 एक्सेस पॉइंट्स के लिए ना एक क्लस्टर खड़ा करते थे. तो अमेजोन के लिए को 25 क्लस्टर खड़े हो गए, और कोई ग्लोबल इन्फो पॉसिबल नहीं थी, बहुत मुश्किल थी. तो इसकी वजह से हमारा नीश ये था कि वी हैव टू कीप ओनली वन सिंगल क्लाउड. बाद में हमने वॉलमार्ट के लिए अलहदा बनाया, क्योंकि वॉलमार्ट AWS पे नहीं आता था. वो अलहदा कहानी. तो गूगल में हम गए, बट देवर स्टिल 2 एक्चुअली 3 GDPR की वजह से. एक यूरोप में था, एक US का AWS था, और एक ये GCP का था. तो वेरी क्विकली कि एग्रीगेटर के अंदर क्या होता था, काफका से मैसेज आया. काफका रीडर ने बेसिकली काफका से मैसेज लिया. उसके बाद एक शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल था. अब इसमें भी कहानी ये थी कि पहले मैसेज एक आता था, अब हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स की एग्रीगेशंस हो रही थी. बहुत बड़ा मैसेज होता था, उसमें किसी को क्लाइंट को यूनिक काउंट करना है, किसी को कुछ और करना है, किसी को कुछ और करना है, बट फॉर द सेम मैसेज. तो पहले तो हम करते थे काफका रीडर रीड कर रहा है और उसके ऊपर आपने जो भी स्टेट रखनी है वही प्रोसेस स्टेट रख रहा है, सब कर रहा है. लेकिन उससे ये हुआ कि काफका के कंज्यूमर इतने ज़्यादा बन गए कि काफका की अपनी कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि इट वाज वेरी प्रोहिबिटिव. तो फिर हमने ये किया कि अब ये पाइथन में किया हुआ था, और पाइथन में करने की जितना कोई रीज़न नहीं थी. वो रीज़न सिर्फ ये थी कि मुझे पाइथन में कोड करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था, तो मैंने किया था. प्रॉब्लम मैं अगर आप करूँ तो इसको शायद गो में करूँगा, लेकिन पाइथन में कर तो लिया. अब उसके बाद पाइथन के अंदर बहुत बुरी सपोर्ट है मल्टी प्रोसेसिंग की. आपने मल्टी प्रोसेसिंग में अगर एक थ्रेड यूज़ करने तो उसमें वो गिल प्रॉब्लम है, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉग, तो बेसिकली इट्स यूजलेस. मल्टी प्रोसेसिंग का मॉड्यूल अगर आप यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंट प्रोसेस हैं, एड्रेस स्पेसेस डिफरेंट है. तो एक उसमें शेयर्ड मेमोरी आता है पैकेज, जो बेसिकली मेमोरी कॉपी करता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उसकी कॉस्ट होती है, वो काफ़ी सारी जो है ना वो कंप्यूट यूज़ करता है. तो बाद में हमने ये किया कि एक कंटेनर के अंदर काफका जो है एक रीडर है जो काफका से रीड कर रहा है. उसके बाद आपने हर एग्रीगेशन के लिए मल्टीपल व्यूज़ चल रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर. तो काफका रीडर रीड कर रहा है, और उसके बाद ये शेयर्ड मेमोरी मैनेजर जो है ना, ये हर की एड्रेस स्पेस के अंदर वो कॉपी कर रहा है. तो हमने उसका जरा देसी सोल्यूशन निकाला कि यार काफका के ऊपर लोड कम कर देते हैं, लेकिन मशीन के अंदर जो है ना कॉपी करने का एक एड्रेस स्पेस से दूसरी एड्रेस स्पेस के ऊपर उसकी कॉस्ट दे देते हैं. तो ये शेयर्ड मेमोरी मैनेजर था ना, ये करता था कि मैसेज आ रहा है, उसको रेप्लिकेट कर हर व्यू के अंदर. हर व्यू वाज रनिंग इन देयर ओन प्रोसेस.
तो बेसिकली ये मैसेज आया, काफका रीडर में गया, शेयर्ड मेमोरी वाले के मैनेजर के पास गया और उसने इसको रेप्लिकेट करके दोनों की मेमोरी स्पेसेस के अंदर इसको अलग रख दिया. So instead of having two Kafka consumers, we had just one. Precisely. You could scale the number of consumers. Exactly. separately. Exactly. But तो per machine होगा. ये पर कंटेनर, दिस इज पर कंटेनर, इस पर कंटेनर. सो जिस तरह कुबरनेटिस में रेप्लिकास होते हैं ना, मेसोस के अंदर मेसोस के कंटेनर होते हैं. सो यू कैन थिंक ऑफ इट कि ये कुबरनेटिस की वर्ल्ड में एक रेप्लिका है. दिस इज नॉट अ सर्विस, एंटायर सर्विस, दिस इज वन ऑफ द रेप्लिकास ऑफ दैट सर्विस. तो अगर लेट्स से आपकी कुबरनेटिस सर्विस में 15 रेप्लिकास चल रहे हैं ना, तो दिस इज वन ऑफ दोज 15 रेप्लिकास. तो इस हमारा स्केजुलर जो था वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड और इंटेलिजेंट था, तो उससे वो भी क्वेश्चन जो है एड्रेस होगा कि फ्लिंक में कर सकते हैं या क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है. बट हम आप कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया था. तो इसके ऊपर मैं आगे थोड़ी सी ना भी लाइट डालूंगा. तो ये दो मैसेजेस यहाँ कॉपी हुए. उसके बाद इन्होंने अपनी स्टेट्स जो भी अपडेट करनी थी इन्होंने की, और दूसरा मैसेज आया, सेम वही कहानी हुई कि स्टेट्स अपडेट हुई दोबारा से. और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि अब रिलायबिलिटी के लिए जू कीपर हम यूज़ करते थे इसकी लाइव एग्रीगेटर की स्टेट रखने के लिए. लाइव एग्रीगेटर स्टेट का मतलब ये है कि यार ये व्यू जो है, ये वाला व्यू जो है ये चल रहा है. लेट्स से ये मशीन उड़ जाती है, तो जू कीपर के अंदर इस व्यू की अपडेट्स आनी बंद हो जाएंगी. इस व्यू की लास्ट अपडेट लेट्स से अगर आधा घंटा पहले की है, तो जो कंट्रोलर है जो हमारा चेक करता था वो कहेगा यार ये व्यू 30 मिनट से डेड पड़ा हुआ है, तो आई नीड टू एक्सेप्ट अ मेसोस ऑफर, spawn a new container and I need to restart this view. तो रिलायबिलिटी इसकी इस तरह से चलती थी. और चेक पॉइंटिंग, ये पूरी का पूरा टेबल जो होता था ना, दिस वाज चेक पॉइंटेड इन S3. Just stopping over here, that means हमारा ऐसे रहता है एग्रीगेशन को दिखाने वाला वो 30 मिनट से तो डेफिनेटली ज़्यादा. 30 मिनट का मैंने ऐसे ही एक रफ नंबर दिया. वो हमारा जो क्रिटिकल टाइम था ना वो 10 मिनट्स था. we had to be real time up to 10 minutes. तो इससे पता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लोग अक्सर लोग बात करते हैं, रियल टाइम है, ये रियल टाइम है या रियल टाइम नहीं है. तो इन माय ओपिनियन रियल टाइम इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव थिंग. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट रियल टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट. तो आई मीन जस्ट टू पुट सम कॉन्टेक्स्ट. अब इसके बाद फिडलर में भी मैंने सिमिलर काम किया था. उसमें रियल टाइम की रिक्वायरमेंट वाज आवर्स, इसके अंदर 10 मिनट थी. और इसमें कुछ यूज़ केस थे जिसकी फ्यू सेकंड 10 से 15 सेकंड थी, जिसके लिए फिर हमें काफ़ी एग्रेसिवली चेक करना पड़ता था कि चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही. बट स्टेट हम S3 में चेक पॉइंट करते थे. और उसके बाद कसांड्रा के अंदर आपके फाइनल एग्रीगेट स्टोर होते थे. सिग्नल फैक्स में जाती थी आपकी सारी टेलीमेट्री की चीज़ें क्या चल रही हैं. अब चूँकि EC2 स्पॉट पे था, तो लेट्स से अब ये हमने जो भी चीज़ें देखी, मैसेज आए, सब कुछ किया, चेक पॉइंट हुआ और ये उड़ गया. लेट्स से मशीन चली गई. अब नई मशीन स्पॉन हुई और उसने सबसे पहले ये चेक किया कि यार मेरे जो एग्रीगेशन में कर रहा हूँ उसका कोई चेक पॉइंट तो नहीं है. उसने S3 में उस पाथ पे जाके चेक किया, उसका चेक पॉइंट पड़ा हुआ था. उसने उसको फैच किया, ये स्टेट उसके पास आ गई और उसने वहाँ से फिर आगे दोबारा से एग्रीगेशन स्टार्ट की. इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये आता था कि स्टेट आपने ली, बट काफका को कहाँ से कंज्यूम करना शुरू करना है, क्योंकि आपका मशीन चली गई 5 मिनट बाद ऐसे दोबारा आई, तो काफका कहाँ से स्टार्ट होगा. तो इसलिए जब आप स्टेट चेक पॉइंट करते थे, स्टेट के साथ आप ऑफसेट भी चेक पॉइंट करते थे कि दिस स्टेट वाज वैलिड एट ऑफसेट XYZ. तो फिर जब आप रिस्टोर करते थे तो आप पीछे वापस जाके काफका से उस जगह से कंजम्पशन स्टार्ट करते थे. डुप्लीकेट्स का हमें अल्लाह के फजल से कभी प्रॉब्लम नहीं आया था. और उसकी मेन वजह ये थी कि हमने बड़े स्टार्ट के अंदर, ये जो अभी मैं बात बताई ना, हमने बड़े शुरू में रियलाइज़ किया था कि स्टेट और ऑफसेट दिस हैज़ टू बी वन सिंगल ट्रांजैक्शन. इसकी लेटेंसी ज़्यादा हो या इसकी लेटेंसी कम हो, डजेंट मैटर. स्टेट क्योंकि हमारी बहुत बड़ी होती थी, हमारी ये जो व्यूज़ थे दे वुड बी व्यूज़ जो 1 GB के स्टेट रखते थे. तो उसको चेक पॉइंट, लेकिन पता है S3 इज़ वेरी फास्ट. 1 GB अपलोड डाउनलोड करना इज़ नो बिग डील. मतलब 1-2 सेकंड में आप 1-2 GB जो है वो अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं. तो उसकी वजह से हमें स्टेट की प्रॉब्लम्स, मतलब बग्स की वजह से आई थी, लेकिन डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में हमारी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं थी. ऑफसेट आप लोग हर मैसेज रीड करने के बाद
नहीं अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमारा ऑफसेट जो था, ऑफसेट एंड स्टेट वर टाइड, देयर वाज अ सिंगल ट्रांजैक्शन। तो अगर मैं ऑफसेट हर मैसेज के बाद कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे स्टेट भी हर मैसेज के बाद करनी पड़ेगी, और स्टेट अगर 1 GB है, ठीक है, 1-2 सेकंड लगते हैं, कम लगते हैं, तो दैट वाज नॉट प्रैक्टिकल। तो इसलिए हम चेक पॉइंट करते थे डिपेंडिंग ऑन कि कितनी स्टेट है उस कंटेनर के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर टिपिकली। तो उसका मतलब क्या है कि आपने चेक पॉइंट किया, 5 मिनट मैसेज कंज्यूम करते गए, उसके बाद स्पॉट चला गया, मशीन उड़ गई, तो फिर आप वापस चेक पॉइंट नीचे ला रहे हैं और आप 5 मिनट पुराने मैसेजेस से स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ से कंज्यूम करके आगे आ रहे हैं। तो स्केजुलिंग के बारे में काफ़ी वेरी क्विकली, लेट्स से ये 3 यूजर्स ने 3 व्यूज़ डिफाइन किए जो हमने चलाने हैं। जू कीपर के अंदर स्टेट पड़ी होती थी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये LA के लाइव एग्रीगेटर के स्केजुलर की क्यू में गए कि भाई ये 3 व्यूज़ हैं, इनको चलाना है। इन्होंने जो है वो मेसो से रिसोर्सेज आई, उसने बेसिकली अब इसके अंदर कौन सी ऑफर एक्सेप्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये डिपेंड करता था कि कितना बड़ा व्यू है कितना नहीं है, जिसके बारे में थोड़ी बुक कीपिंग होती थी जो आगे ऑटो स्केलिंग में आएगा। लेकिन हम रिसोर्सेज जो थे उसकी बेस के ऊपर सिलेक्ट करते थे कि मीसोस की ऑफर लेनी है नहीं लेनी है, और उसके बाद व्यूज़ स्केड्यूल हो जाते थे और ये व्यूज़ चलने शुरू हो गए, दे आर मार्क्ड एज रनिंग। अब कुछ स्केलिंग के नंबर्स की तरफ आते हैं। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ अ टिपिकल डे। ये है मैसेज कंजम्पशन जो हम काफका से रीड कर रहे हैं। तो ऑन अ टिपिकल डे वी वेंट अप टू लाइक 480,000 मैसेजेस पर सेकेंड, और दिन के हम तकरीबन 25 बिलियन मैसेजेस कंज्यूम करते थे। और मतलब एज यू कैन सी ये पीक के ऊपर 620K तक भी जाता था। ये बाद में और भी बढ़ गया था, दिस क्रॉस्ड प्रॉब्ली मिलियन मैसेजेस पर सेकेंड। तो ये जो जिस टॉपिक में आ रहा था उसकी भी मतलब से आपके 60 लोग 60 पार्टिसिपेंट्स। हाँ, ये जो जिस टॉपिक में आ रहा था ना, एक्चुअली हमारे पास मेन टॉपिक जो थे ना वो 2 थे। 2 मेन टॉपिक्स थे जिनके स्टार्ट में 10 पार्टीशन थे, फिर उसके बाद काफ़ी अर्से तक 50-60 चलते रहे थे, फिर शायद 100 भी हो गए थे। लेकिन 2 मेन टॉपिक्स थे और वो 100 के करीब पार्टीशंस में डिवाइडेड थे। हाँ, ये दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं ऑटो स्केलिंग पे आऊँगा ना, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमारा स्केड्यूलर था ना, वो इंटेलिजेंटली बिन करता था व्यूज़ को। तो वो कहता था यार ये वाला जो व्यू है ये इस टॉपिक A के पार्टीशन X पे चलना है, और ये वाला व्यू जो है ये भी टॉपिक A के पार्टीशन X पे चलना है। तो मैं इन दोनों को एक जगह करता हूँ ताकि एक काफका रीडर जो है रीड करे, दोनों को दे और हमें अलग अलग रीड ना करना पड़े। लेकिन वो चीज़ ख़राब पता कब होती थी कि वो क्योंकि स्पॉट पे थे, मशीनें उड़ रही हैं, इधर जा रही हैं, तो फ्रेगमेंटेशन हो जाती थी कि फिर ये हो जाता था कि काफका कंज्यूमर आइडियली लेट्स से 500 होने चाहिए, 500 कंटेनर्स होने चाहिए, लेकिन चूंकि ये बार बार मर जिंदा हो रहे हैं तो इसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन हो जाती थी। तो फिर हमें करना पड़ता था कि हमें देसी तरीके से जाके उड़ाने पड़ते थे कि यार ये दोनों गलत चल रहे हैं, ये इनको मारते हैं तो ये दोबारा एक रीडर से शुरू हो जाएंगे। बट थोड़ी सी उसके बारे में आगे डिस्कशन आएगी ऑटो स्केलिंग के अंदर। तो हमारे पास जिस तरह मैंने टाइम सीरीज दिखाई थी, वी वर कीपिंग अ लॉट ऑफ स्टेट। तो 300 मिलियन टाइम सीरीज थी जो हम जिसकी स्टेट हमने अपने पास रखी हुई थी। और एट पीक टाइम्स वी वर डूइंग 2 मिलियन ऑपरेशंस, 2 मिलियन एग्रीगेट ऑपरेशंस पर सेकंड, जिसमें डिस्टिंक्ट काउंट वगैरह जो था ये ज़रा मुश्किल। हम डिस्टिंक्ट काउंट टॉप के इस तरह की चीज़ें करते थे विच आर नॉट लाइक, जिसके लिए हमें बिट मैप्स रखने पड़ते थे और इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती थी। तो उनकी अपनी काफ़ी स्टेट और कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह होती थी। मेमोरी फुटप्रिंट अक्रॉस अराउंड 1000 कंटेनर्स हमारे चल रहे थे प्रोडक्शन में फॉर एग्रीगेशन। तो मेमोरी फुटप्रिंट हमारा अक्रॉस दोज 1000 कंटेनर वाज अराउंड 2.5 टेराबाइट्स। और एक्चुअली दिस वाज अ वेरी इम्प्रेसिव नंबर, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लॉट ऑफ हमारी टॉक्स वगैरह भी जो मेनली एक्सेप्ट हुई बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में, दिस वाज द मेजर नंबर विच पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड इन, क्योंकि इसके अंदर आई वुड एक्चुअली इन सम ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज आई वुड डेमोन्स्ट्रेट कि ये मशीनें हैं, ये हमने 2 मशीनें उड़ा दी हैं, मतलब ड्यूरिंग अ टॉक, एंड
उसके बाद वो दिखाते थे, कुछ नंबर्स थे हमारे पास कि यार ये देखें, ये व्यूज़ जो है ना ये नहीं चल रहे हैं अब, एंड दे आर लैगिंग बिहाइंड, और अब ये दोबारा रीस्केड्यूल हुए हैं, यू नो दे आर कैचिंग अप। तो कसांड्रा के अंदर वी वर डूइंग अराउंड 4 बिलियन राइट्स अ डे। तो कसांड्रा की एक हमें काफका के प्रॉब्लम्स आए थे ऑटो बैलेंसिंग के, उसके बाद हमें कसांड्रा के भी बड़े प्रॉब्लम्स आए थे, क्योंकि कसांड्रा के अंदर सारी हमारी एग्रीगेटेड डेटा जो था वो वहाँ स्टोर हो रहा था। अच्छा, अब आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि अब ये बंद तो गया, और शुरू में हमने इसको चलाया ऑन डिमांड रिजर्व क्योंकि जल्दी थी, लेकिन उसके बाद ना इसका बिल शील बहुत बढ़ना शुरू हो गया। तो फिर मेरा CEO आके कहता था, यार उस्मान, देसी था वो, इंडियन था, कहता था यार उस्मान इसको ना स्केलेबल बनाओ कि स्केल ज़रूर करे लेकिन रिलायबल भी रहे और पैसे भी कम खर्च हो। तो मैं उन्हें कहता था कि सर कोई चौथी चीज़ अगर है तो वो भी बता दें, वो भी पूरी कर देंगे। हाँ, तो बट यू नो द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ के इट इज़ ऑलवेज दैट केस, सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो हमने स्टार्ट में तो हमने जब किया था तो हमने ऑन डिमांड और रिजर्व यूज़ किया है, लेकिन बड़ी जल्दी फिर हमें सोचना पड़ा कि यार कॉस्ट का क्या करना है। और वाईफाई जो है ना वो बड़ी गंदी इंडस्ट्री है, गंदी इंडस्ट्री इन द सेंस कि लोग पैसे नहीं देते हैं। ये बाकी जो सैस कंपनीज है ना, स्नोफ्लेक, कॉन्फ्लुएंट, लोग खुल के पैसे डराएंगे। जो वाईफाई कंपनीज है ना, इसमें कहते हैं यार AI लगा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पैसे कम, लाइसेंस कॉस्ट कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से एडिशनल हम पे कंस्ट्रेंट्स थे कि यार कॉस्ट आपकी इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, अगर जा रही है तो बंद कर दो सब कुछ। तो मैंने शुरू में ना केओस मंकी, पता नहीं आप लोगों से कितने सुना हुआ है, तो केओस मंकी से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था जब मैं येल्प में काम करता था कि यार ये अपनी मशीनें खुद ही उड़ा रहे हैं बैठ के, ये तो कमाल की हुई है इन्होंने। लेकिन फिर जब येल्प में मैंने स्पॉट पर काम किया ना, तो मेरा केओस मंकी के बारे में ना थोड़ा सा व्यू चेंज हुआ। तो केओस मंकी जो है ना, उसमें होता क्या था, हम येल्प में भी यूज़ करते थे कि एक सर्विस है आपने चला दी, उसने रैंडम मशीनें मारनी शुरू कर दी। लेकिन अब येल्प में कभी हमारे पास आउटेज आती थी ना, कोई प्रॉब्लम आती थी, सबसे पहला काम ये करते थे, हम केओस मंकी बंद करते थे कि यार ज़िंदगी तो सुकून में है थोड़ी। तो मेरी नज़र में ना केओस मंकी वॉज कंट्रोल्ड केओस, कि आपकी मर्जी है, आप उसको स्टार्ट कर दें और स्टॉप कर दें। हमने स्पॉट इंस्टेंसेस यूज़ करने शुरू किए ना, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती थी कि एक आउटेज चल रही है और उसके दरमियान स्पॉट भी उड़ रहे हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट। आई मीन इफ 80% ऑफ योर डेटा सेंटर इज रनिंग ऑन स्पॉट इंस्टेंसेस, आप ये नहीं कर सकते कि आउटेज आ रही है तो यार अब चलो इनको ऑन डिमांड पे कर सकते हैं। 80% डेटा सेंटर आप चेंज तो नहीं कर देंगे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो आई यूज टू कॉल दिस एज अनकंट्रोल्ड केओस। तो मेरी एक AWS वेलोसिटी कॉन्फ्रेंस में टॉक है विच इज़ ओनली अबाउट बेसिकली दिस थिंग, कंट्रोल्ड केओस वर्सेस अनकंट्रोल्ड केओस। तो हमने फिर जब ये यूज़ कर, लेकिन बट यू नो इट कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस। जब मैं लोगों को शुरू में कहता था यार कि 2.5 टेराबाइट्स की मेमोरी है और हम इसको स्पॉट पे चलाएंगे, तो AWS वाले खुद कहते थे कि यार तुम पागलो मरा अकाउंट तुम निकलवाओगे इस तरह का फजूल काम कर करके, बट यू नो इट वर्कड आउट प्रीटी वेल। तो ये वो एक इंस्टेंस था कि इस दिन हमारे हम, क्योंकि यू नो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑब्जर्वेबिलिटी, तो हम मैट्रिक्स में बड़ी कलेक्ट करता था। तो मैंने क्रॉन जॉब वगैरह लिखी हुई थी जो ये देखती रहती थी कितनी मशीनें जा रही हैं स्पॉट की। तो ये एक दिन आया था जिस दिन हमारी 800 मशीनें गई थी, जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था, लेकिन हमें इसका पता नहीं लगा था, विच वॉज यू नो ह्यूज सक्सेस फॉर अस। और लैग जिस तरह मैंने आप 800 वापस आती हैं, बट यू नो द कॉम्प्लिकेशन इज, जो मैंने येल्प में एक गलती की थी, एंड यू नो मे बी इट्स वर्थ टॉकिंग बिकॉज आई थिंक दैट गलती इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी ऑफ दीज स्लाइड्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। तो मैं जब येल्प में होता था तो मैंने शुरू में कहा यार स्पॉट पे चलते हैं। हमारा एक क्लस्टर था जिसकी कॉस्ट $1 मिलियन थी। तो मैंने उनसे कहा यार ये मिलियन जो है ना ये $1,00,000 पे आ जाएगा। उसने कहा भाई कल की सुबह नहीं होने देनी, इसको अभी कर दो अगर इतने पैसे बचते हैं। मैंने कर दिया, वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था। मैंने R3-8X लार्ज मशीन्स यूज़ की थी। अब एक दिन क्या हुआ, मैं ऑन कॉल होता था, मुझे पेजर्स आने शुरू हो गए, वो ये हो गया। तो मैंने जाके चेक किया था, पूरा का पूरा क्लस्टर उड़ गया। और उसकी वजह ये थी कि मैंने एक R3-8X लार्ज मशीन यूज़ की हुई थी, उसकी अमेज़ॉन में बिडिंग प्राइस होती है ना, आपने बिड कितना किया और करंट प्राइस क्या चल रही है। तो पता नहीं कोई पागल था, उसने ऑन डिमांड से भी डबल ट्रिपल उस पर बिड कर दिया। आई हैव नो आइडिया व्हाई दे डिड दैट, प्रॉब्ली गलती होगी ये क्या था। तो हमारी सारी की सारी R3-8X मशीनें उन्होंने छीन ले ली। तो उसके बाद मैंने ये लर्न किया था कि भाई यू हैव टू डाइवर्सिफाई।
बल्कि मज़े की बात ये, उसके बाद हमने एक येल्प में काम किया था जिसकी टॉक है री इन्वेंट के अंदर। सीगल के बाद एक और आई थी स्पॉट फ्लीट के, नहीं स्पॉट फ्लीट नहीं, उसका नाम मुझे भूल गया, लेकिन 2017 में शायद आई थी। वो जो बंदा था ना, वो उसके बाद आया था, उससे मेरी बात शायद हुई थी डिमिट्री नाम का, उसने बेची थी अपनी स्टार्टअप अमेजोन को स्पॉट फ्लीट की। तो वो स्पॉट फ्लीट वही करती थी जो 2015-16 में हमने येल्प में किया था। बट यू नो, इफ यू एवर वांट टू यूज स्पॉट, स्टार्ट फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन। जिस तरह स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए, इस तरह स्पॉट मार्केट में भी डाइवर्सिफाइड है। तो ये इज नॉट वेरी, यू नो, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिटेल ओवर हियर, बट ये यार बिडिंग का प्रोसेस जो था ना, वो अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में आप कुछ खास कर नहीं सकते हो। उसकी वजह ये है कि आपने एक दफ़ा बिड किया, आपको मशीन मिल गई, तो आप रन टाइम पे बिड नहीं चेंज कर सकते हो। अब वो आपको मिल गई है, आपने अगर बढ़ानी है बिड तो आप उस मशीन को फारिग कराओ और नई लाओ। लेकिन उस मशीन को अब ये नहीं कर सकते हो यार कि अच्छा इसको अभी ना, इसको लेके ना जाइए, मैं तो ज़्यादा पैसे देता हूँ, ये वाला चक्कर नहीं है। वो कहते हैं भाई अब दोबारा मशीन आएगी तो ज़्यादा पैसे तभी लेंगे तुमसे। तो इस वजह से ना देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ चार्म। तो हमने क्या किया था, हमने थोड़ी देर मार्केट ऑब्जर्व की थी, स्पॉट मार्केट। उसके बाद मैंने थोड़ी रिसर्च की थी। मैंने कहा था यार कि अगर आप ऑन डिमांड से डबल भी बिड करते हैं ना, तो आप सेफ भी होंगे और आपकी मशीनें कभी जाएंगी नहीं। देयर माइट बी अ फ्यू आवर्स जहाँ पे आप डबल पे कर रहे हो ऑन डिमांड से, बट इट्स फाइन, आपकी मशीनें कम जाएंगी। और स्पॉट प्राइसिंग जो है वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अमेजोन ने उस पर बड़ी इंप्रूवमेंट्स भी की हैं। अब ये बिडिंग शिडिंग भी नहीं होती है बेसिकली। अब मशीनें बहुत कम आपकी जाती हैं, लेकिन जाती भी हैं, बट ये बड़ा इंप्रूव किया है इन्होंने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। बट या वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑटोमेटेड ओवर देयर। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल थी जो मैंने मशीन में बता रहा था, मैंने एक टॉक में बंद की थी। तो ये लैग है इसका, बेसिकली ये बता रहा है कि आखिरी मैसेज जो कंज्यूम किया है वो कितना पुराना था। तो ये लैग बेसिकली जीरो के पास है, यानी कि मोस्ट रिसेंट मैसेज हर वक्त कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे ये स्पॉट इंस्टेंस हमारा हमने टर्मिनेट किया, इसलिए ये बता रहा है। तो ये लैग बढ़ना शुरू हो गया, जिसका मतलब ये है कि कंट्रोलर आपको कह रहा है भाई कि ये मशीन, ये वाला जो एग्रीगेशन है, ये इसकी आखिरी मैसेज कंज्यूम जो है ना वो 5 मिनट पहले हुआ था, 6 मिनट पहले हुआ था, 7 मिनट। कंट्रोलर ने पिक किया, नई मशीन ये वाली आई, उसने इसके ऊपर स्केड्यूल किया। अब इसके ऊपर 1 मिनट का लैग था, 1 मिनट पुराना मैसेज कंज्यूम कर रहा था, उसने विद इन अ फ्यू सेकंड सारे मैसेज कंज्यूम किए और फिर रियल टाइम में आ गया। आप लोगों में से किसी से ऑटो स्केलिंग के बारे में बात हो रही थी। हमारे ऑटो स्केलिंग के ना 2 डिफरेंट डायमेंशंस थी जिस वजह से कॉम्प्लिकेटेड थी। एक तो इसके अंदर अब ये नंबर ऑफ एपी, जिसका मतलब वाई एक्सेस काटा हुआ है ड्यू टू वो प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। तो ये नंबर ऑफ एपीज है कि एक्सेस पॉइंट्स कितने हैं, दे डायरेक्टली ट्रांसलेट इनटू काफका मैसेजेस, नंबर ऑफ काफका मैसेजेस। तो अब इसमें देखें, एक तो नए कस्टमर्स आ रहे हैं और लोड बढ़ रहा है, और एक सीजनैलिटी है, हर दिन के ऊपर भी लोड बढ़ता है। तो हमें ऑटो स्केलिंग जो करनी थी उसमें दोनों चीज़ों को काउंट फॉर करना था कि एक तो ओवरऑल मशीनें भी बढ़नी चाहिए, और एक अगर हो सके दिन में ज़्यादा मशीनें हो, रात को कम मशीनें हो। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली कंटेनर राइट साइजिंग वाज द मेन थिंग कि यार चीज़ें जो है ना वो बड़ी वेल प्लेस्ड हो, कि इसको 2 कोर चाहिए तो इसको 2 कोर मिले, इसको 5 कोर चाहिए तो इसको 5 कोर मिले। और सिमिलरली एक मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट थी। अब टाइम जो है ना थोड़ा कम रह रहा है, तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी इसमें आगे जाता हूँ ताकि हम ज़रा क्रक्स के ऊपर पहुँचे। तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हमारा पूरा लाइव एग्रीगेटर के सारी जो एग्रीगेशन का पार्ट था ना, इट वाज वेरी वेल इंस्ट्रूमेंटेड। तो हमें ये भी पता होता था कि हमारा काफका रीडर जो है इस टॉपिक के इस पार्टीशन के ऊपर काफका रीडर जो है ना वो 0.2 कोर्स लेता है। शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल जो है वो 0.2 कोर्स ले रहा है। ये वाला व्यू जो है एग्रीगेशन करने का 0.8 ले रहा है, ये 0.6 ले रहा है। इन नंबर्स को यूज करके हम मेसो से रिसोर्सेज मांगते थे। ठीक, अब ये पूरे का पूरा जो कंटेनर चल रहा है ना, ये कह रहा है भाई मुझे 1.8 कोर्स चाहिए, और ये हम जू कीपर में अपडेटेड रखते थे। हर वक्त कंटेनर ये कहता रहता था कि यार अब मैं इतनी ले रहा हूँ, अब मैं इतनी ले रहा हूँ, अब मैं इतनी रिसोर्सेज ले रहा हूँ। और इसकी बेसिस के ऊपर ये मेसो से हम ये बता रहा था कि रिसोर्सेज लेते थे। और एक्चुअली
मेसोस ने 2 कोर्स दिए, हमने अब ये सारे नंबर रखे हुए हैं ये जो इस साइड के ऊपर। हमने कहा अच्छा यार टास्क काफका रीडर का इतना हो गया, व्यूज़ के इतने हो गए, शेयर्ड मेमोरी के इतने हो गए, तो भाई हमें 1.8 चाहिए, 0.2 तो वापस ले ले। तो 1.8 की हमने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, बाकी 0.2 उसको वापस रिलीज़ कर दिया और टास्क चल गई। अब ऑटो स्केलिंग के लिए इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमारा लोड दिन के ऊपर भी चेंज हो रहा होता था। तो अब हर कंटेनर हर कुछ सेकंड के बाद अपनी आप को इंस्ट्रूमेंट करता रहता था कि मैं कितनी सीपीयू कितनी मेमोरी ले रहा हूँ, और उसने मेसोस को कितना बताया होता था वो भी उसको खुद पता होता था कि मैंने मेसोस को 1.8 कोर्स कहे हुए हैं, और वो अपने आप को मेजर भी कर रहा है। तो फिर ये मैंने एक चीज़ मतलब एक टर्मिनोलॉजी लाई थी लाइंग फैक्टर, कि भी कौन सा कंटेनर कितना झूठ बोल रहा है। अगर उसने 1.8 कोर्स मांगे हैं, एलोकेट हुए हैं मेसोस के अंदर, तो क्या वो 3 कोर ले रहा है? क्योंकि अगर वो 3 कोर ले रहा है तो ये तो प्रॉब्लम है ना, उसके साथ जो और कंटेनर्स पड़े हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। और बाय द वे ये वो ना कुबरनेटिस से पुरानी बातें हैं, इसके ऊपर जो वो आपके क्या थे, कौन से ग्रुप्स होते थे यार, सी ग्रुप्स, तो वो सी ग्रुप्स वगैरह जो थे ना वो इस पे बस सी ग्रुप चल जाते थे, लेकिन सीपीयू की कोई रोकथाम नहीं थी। पूरे का एक कंटेनर आके पूरे का पूरा मशीन उड़ा दे, मेसोस उसको कुछ नहीं कहता था। हाँ, तो बेसिकली हम ये नंबर्स, हम हर कंटेनर अपनी टोटल कंजम्पशन ट्रैक कर रहा है, और अगर वो एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ था, अगर उसने 2 कोर मांगे हैं और वो 3 कोर ले रहा है, और जैसे थ्रेशोल्ड जो है 0.5 है, तो कंटेनर जो था ना वो अपने आप को, वो उसको मैं कहता था कि वो सुसाइड करता था, वो अपने आप को किल 9 कर देता था, चेक पॉइंट करता था, किल 9 कर देता था। और चूंकि वो अपडेट कर रहा होता था अपनी सारी रिसोर्सेज वगैरह जू कीपर के अंदर, तो वो अपने आप को मारता था। वो उस वक्त 3 कोर ले रहा होता था, स्केजुलर आता था, वो क्या देखता था, कहता है इसको 3 कोर चाहिए, तो उसको 3 कोर लेके फिर स्टार्ट करता था। तो ये प्रोडक्शन का एक स्नैपशॉट है कि ये वो सीपीयू कंजम्पशन है सारे कंटेनर्स की। तो जिस तरह ये कंटेनर जो है ना, ये बड़े स्टेडी स्टेट में खुश चल रहा है। ये कंटेनर ताकि आपका जो ग्लोबल व्यू ऑफ द करंट कंजम्पशन है वो सही। हाँ, किल इसलिए करते हैं नॉइजी के, एक मशीन है 4 कोर की, उस पर 2 कंटेनर चल रहे हैं, दोनों कंटेनर ने ऐसे दो सीपीयू मांगे हुए हैं। अब उसमें से एक कंटेनर जो है वो अगर 3 सीपीयू लेना शुरू कर देता है, तो दूसरा 2 ले रहा है, तो 5 सीपीयू तो है ही नहीं, तो वो दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा। तो इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल फाउंडेशन ये थी कि यार आपने जितनी रिसोर्सेज मांगी हैं, अगर आप खुद उसकी पुलिसिंग अपनी खुद करोगे ना, तो हमें कोई सेंट्रल पुलिसिंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इस वजह से स्केलेबल भी बहुत था कि कोई सेंट्रल चीज़ नहीं है जो मेक श्योर कर रही है कि हर बंदा जो है वो हर कंटेनर कंजम्पशन अपनी उसके लिहाज से कर रहा है। तो जिस तरह ये वाला एक कंटेनर था, ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद इस पर लोड बढ़ा, और मतलब इसकी ये लाइन फैक्टर है, जिसका मतलब ये है कि लाइन फैक्टर अगर नेगेटिव होगा, एक्चुअली लाइन फैक्टर मुझे भूल गया, लाइन फैक्टर अगर नेगेटिव होगा तो ये ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहा है या कम ले रहा है, ये मुझे भूल गया कि क्या था। हाँ, तो लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इसने इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया, तो इसने अपने आप को किल कर लिया। सिमिलरली, और ये नॉइजी नेबरली, तो ये नॉइजी नेबर वाला काम है कि यार अक्सर लोग जो कहते हैं ना यार ये मशीन ओवरलोड होगी, इसको रिस्टार्ट कर दो, तो मोस्ट प्रॉब्ली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की दुनिया में ना कोई गन मार रहा होता है। तो वो जो गन मार रहा होता है ना, उसको साफ़ करना ज़रूरी है, मशीन रिस्टार्ट करना इतना ज़रूरी नहीं है। तो हमारे ये कंटेनर्स जो थे फिर इस तरह से अपने आप को खुद ही किल कर लेते थे। और ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है कि जब रात को लोड कम हो रहा है तो आपका सीपीयू एक्स्ट्रा बच रहा है, और आपका कंटेनर ने 2 मांगे थे, अब वो 1 यूज़ कर रहा है, तो उस वक्त आपको इसको पास इसको आप फिर भी इससे किल करो ताकि मेसोस की रिसोर्स फारिग हो। और जब मेसोस की रिसोर्स फारिग होती थी तो फिर हमारी सेकंड लेवल ऑफ ऑटो स्केलिंग ट्रिगर होती थी, विच इज़ कि यार आपके पास लेट्स से 2000 VCPUs हैं, उसमें से 1000 VCPUs जो है वो एलोकेटेड ही नहीं है, मेसोस उसको यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो सेकंड लेवल के ऊपर हम वो स्पॉट इंस्टेंसेस उड़ा देते थे, जिसकी वजह से कॉस्ट कम होती थी। तो ये बेसिकली वो चीज़ शो हो रही है। ये पिंक वाली लाइन जो है ना, दिस इज़ द क्लस्टर साइज, हाउ मेनी VCPUs आर देयर, और ये जो ब्लू वाली है, दिस इज़ द एक्चुअल कंजम्पशन जो हमारे सारे व्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं। तो दिस वाज कंप्लीटली विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। तो आप ये देख रहे हो कि जब पीक टाइम आया तो ऑटो स्केल किया क्लस्टर खुद ही ऊपर, और उसके बाद जब शाम हुई तो वो नीचे वापस स्केल किया। अब हमारे पास 1 मिनट रह गया है, तो मैं इसको जल्दी से ये दिखा दूंगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, जो पहले भी क्वेश्चन आया था कि जब पार्टीशंस हमने साइड से किए हुए हैं
तो भाई कोई पार्टीशन बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, और अगर लेट से फॉर वट एवर रीज़न हमारे पास, अब ये यूज़ केस पता क्या था, हमारे कुछ कस्टमर्स थे, हम इंडोर लोकेशन करते थे, तो अब हमारे पास वो कहते थे यार कि हमें ना, खैर ये भी एक मैंने हैकाथॉन में एक ये फीचर बनाया था, तो हमने कहा यार एक वीडियो बनाते हैं जिसमें लोगों को हम ट्रैक करते हैं, पूरा जो मैप है उसको 2 डायमेंशन में डिवाइड करते हैं और हर सेल के अंदर ट्रैक करते हैं कितने यूनिक क्लाइंट्स आ रहे हैं, इससे हमें पता लगेगा कि लोग कहाँ पे होते हैं, मूव किस तरह करते हैं और क्या होता है। अब वो कर तो दिया, लोगों को पसंद भी आ गया, लेकिन उसमें ये था कि उसमें इतना डेटा आता था कि एक CPU के बस का काम नहीं था। तो हमने फिर इसके अंदर 2 लेवल, बेसिकली दिस इज़ अ गुड यूज़ केस फॉर काफका स्ट्रीम्स। अब ये इस तरह के यूज़ केसेस बड़ी अच्छी तरह हैंडल करें, तो हम इसमें करते क्या थे, हमने ये ग्रिड में डिवाइड कर दिया पूरे मैप को, और उसके बाद रैंडमली हमने लेट्स से शार्ट कर दिया मैक एड्रेस के ऊपर। तो अब लेट्स से 3 पार्टीशंस हैं, हर पार्टीशन के ऊपर एक एग्रीगेटर काम कर रहा है और वो देख रहा है कि सेल में कितने यूनिक बंदे आ रहे हैं, ठीक है। अब सब ने ये डिटर्मिन किया, उसके बाद लेट्स से हम अगर ये हर मिनट या हर 10 मिनट के ऊपर ये एग्रीगेट्स कर रहे हैं, तो हमने हर 10 मिनट में ये हर पार्टीशन का एग्रीगेट किया, उसके बाद इसको वापस काफका में लिखा, और उसके बाद दोबारा से ये रीड हुआ एक और एग्रीगेटर के अंदर, जिसने इन 3 मैप्स को फिर कंबाइन किया इनटू 1। तो इस तरीके से हमने ये बेसिकली लोकेशन वगैरह के कुछ काम किए थे, जिस तरह इसमें तो मेरे से नज़र ही नहीं आ रहा, हाँ इसमें नज़र, तो ये जिस तरह एक ऑफिस है उसमें लोग आ रहे हैं, वो एक जगह बैठे हुए हैं, पता नहीं फिर लंच करने कहीं चले जाते हैं, क्या करते हैं, तो दीज आर मल्टीपल फ्रेम्स ऑफ दिस स्पेशल एग्रीगेशन जो हमने की हुई थी। तो वी आर, मेरे पास तो स्लाइडें ख़त्म हो गई हैं, अगर कोई क्वेश्चंस और हैं तो। यार काफका क्लस्टर की ऑटो स्केलिंग ना, इनसे भी सुबह आज इस बात पे डिस्कशन हो रही थी। काफका की ऑटो स्केलिंग जो है ना, वो ऑफ कोर्स की जा सकती है। उस काफका की ऑटो स्केलिंग में कॉम्प्लिकेशन ये है कि काफका में जो हमारे ना बफर्स काफ़ी लंबे होते थे, हम तकरीबन 3-3 दिन का डेटा रखते थे काफका के अंदर फॉर वेरियस रीजंस, जिसकी वजह से हमारी EBSs बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हम अगर करना चाहते, हमने एक दफ़ा ट्राई किया था काफका के ऊपर भी और कसांड्रा के ऊपर भी, कि यार मशीन गई, वो EBS किसी और को लगा दो, तो वो चल रहा था लेकिन वो ना इतना अच्छा नहीं चलता था, उससे लेटेंसी बड़ी आती थी। एक तो क्या होता था कि उस ब्रोकर के साथ जितने कनेक्शन थे ना वो सारे गए, ठीक है, लेकिन चलो उसको हम रीट्राई भी कर लेते, बट उसके अंदर लेटेंसीज वगैरह जो थी ना, वो काफ़ी ऐसी आ रही थी कि लेटेंसी से हमें प्रॉब्लम पड़ रही थी। तो हमने, लेकिन फिर इवेंचुअली प्रॉब्लम ये आती है कि जिस तरह एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, उसमें एंड पे क्वेश्चन ये आता है कि यार ये करना क्यों है, ये इसका कोई और सोल्यूशन है। तो हमने कहा जी इसका एक और सोल्यूशन है कि जो दिन में चेंज करता है लोड ऊपर नीचे, हम उसको अगर ओवर प्रोविजन कर दें कि हम हमेशा लेट्स से मैक्सिमम लोड अगर बर्दाश्त कर सकें, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी। हमारी मेजर कॉस्ट जो थी ना, वो एग्रीगेशन की थी। काफका क्लस्टर हालांकि हमारा बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन एग्रीगेशन का क्लस्टर फिर उससे भी बड़ा हो गया था। तो काफका की बेसिकली काफका से 5 से 6x ज़्यादा कॉस्ट हमारी एग्रीगेशन की थी। तो इसकी वजह से हमने काफका को ना ऑटो स्केल नहीं किया, क्योंकि उसमें एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड था। काफका की ऑटो बैलेंसिंग हम करते थे, जो कि शुरू में क्या होता था कि यार काफका जो है ना, खुद भी एक पार्टीशन उठा के दूसरी जगह कर देगा, इधर कर देगा, फॉर वट एवर रीजन्स, मतलब उसकी कभी हम डिटेल्स में कम गए थे। बट तो हमारे साथ क्या होता था, एक ब्रोकर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, एक पार्टीशन पड़ा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, तो हमें फिर उस पार्टीशन को रीबैलेंस करना पड़ता था किसी और ब्रोकर के ऊपर। तो ये मैनुअल काम था, इसको हमने थोड़ा ऑटोमेट करने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रोकर फिर भी हाथ से डलता था। काफका स्ट्रीम बिकॉज वो यूज करता है काफका को ही अंडरलाइन स्टेट और उसकी वजह से बेसिकली मेमोरी टू डिस्क पुश बहुत ज्यादा होती है। दैट इज लाइक सीरियस टू वर्क, तो आपका वो नेटवर्क बॉटलनेक बहुत बड़ा
relating to then use NVMEs and because it become हमारा हाँ अब ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है. अब काफका के यूज़ पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल हमारे जो 99% कंज्यूमर्स होते थे ना वो ये एग्रीगेशन के होते थे और वो रियल टाइम कंज्यूम कर रहे होते थे अनलेस एंड अनटिल को मशीन रीस्टार्ट हुई है विच वाज रेयर, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ऑलवेज डेटा वुड बी इन मेमोरी. काफका को उस पर नहीं जाना पड़ता था. कितने टाइम का आप करते थे? तो in that one live aggregator, हाँ what's the size of your single metal जिस पर आप aggregation करते थे? अब एग्रीगेटर्स में ये होता था कि मैसेज जैसे ही आया ना एक्सेस पॉइंट से विद इन 1 to 2 सेकेंड वो मैसेज कंज्यूम हो गया. ठीक है. अब वो स्टेट हमने वो एग्रीगेटर्स की स्टेट में आ गया. अब वो मैसेज जो है दोबारा कंज्यूम नहीं हो रहा. ठीक है. तो हम जो काफका से कंज्यूम करते थे ना दैट वाज वेरी रियल टाइमिश कि जैसे ही मैसेज आ रहा है फौरन कंज्यूम हो रहा है. हमारे जो डेली एग्रीगेट्स होते थे ना, हम 10 मिनट्स के एग्रीगेट्स भी करते थे, आवरली भी करते थे, डेली भी करते थे. जो हर डे का एग्रीगेट होता था वो हमारे पास 2-3 दिन पुराने भी डेज का एग्रीगेट पड़ा होता था. मतलब आज के टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स, कल के टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स ये मेमोरी में पड़े होंगे. सिर्फ 2 रोज हैं. So sorry cutting you off, but what's your typical size? What was your typical size of memory on any one live aggregator? ये रेंज करता था फ्रॉम इट वाज अ ह्यूज वेरी वास्ट रेंज. ये रेंज करता था 50 MB से लेकर 3-3, 4-4 GB तक, डिपेंडिंग ऑन के कौन से एग्रीगेटर की बात हो रही है. तो हमारे जो कंटेनर्स हैं ना 1000 कंटेनर, इसके ऊपर एक डिफरेंट टॉक के अंदर मैंने नंबर्स दिखाए हुए हैं. इसमें 50 MB से 3-4 GB तक जा रहे हैं और CPU की साइड पे 0.1 CPU भी कोई ऐसे छोटे मोटे एग्रीगेट्स होते थे वो 0.1 CPU ले रहे हैं. और कुछ ऐसे होते थे जिस चूँकि मल्टीपल प्रोसेस थे कंटेनर के अंदर, कुछ ऐसे होते थे कि 4-4, 5-5 व्यूज़ चल रहे हैं और 4-4, 5-5 CPU ले रहे हैं. कसांड्रा नहीं था, काफका नहीं था, ज़ूकीपर नहीं था, डेटा स्टोर्स नहीं थे. बाकी जो स्टॉर्म चल रहा था दैट वाज आल्सो कम्प्लीटली ऑन स्पॉट. और ये जो मेसोस और स्टॉर्म क्लस्टर जो थे दोज वर कम्प्लीटली ऑन स्पॉट. यार ये सारा जो था ना बनाने में टाइम, ये तो होता था कि ये बनना कितने टाइम में चाहिए. तो ये हमने बड़ी शुरू में स्पॉट शुरू कर दिया था. फिर मतलब लाइव एग्रीगेटर हमने चलाया शुरू में. हमारा जो CEO था ना वो ज़रा इस लिहाज से वो कहते थे भाई ये $15-20 की भी कॉस्ट मुझे नहीं चाहिए, इसको अभी डालो. तो हमने बड़ी शुरू में स्पॉट कर दिया था, ज़्यादा देर नहीं में लगी थी. Is that because of कि आपके पास spot instances थे and then you had multiple views running inside container and then you had auto scaling? Are these the 3 things that made this cost effective or am I missing something? यार, if you were to ask me the single most important factor, that was spot instances. But you know things are always intertwined. You cannot use spot instances if the underlying application is not reliable. ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी reliability had to be rock solid. वरना और एक्चुअली वी हैड कस्टमर APIs. तो ऐसा नहीं था कि लोग बस स्क्रीन पे देख के चीज़ें खुश हो रहे हैं. Amazon वगैरह जो है दे हैड रिटन स्क्रिप्ट्स जो हमारी APIs हिट करेंगे और ये नंबर्स लेंगे. एंड समटाइम्स स्टार्ट के अंदर वो हमें कॉल करते तो कहते थे कि आप बकवास कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि हमारे यहाँ पे 1 लाख बंदा, हमारे पास 5000 बंदा है टोटल, तुम कह रहे हो लाख बंदा है यहाँ पे. तो इस वजह से इट हैड टू बी सुपर रिलायबल. खैर वो एक बड़ी मेरे दिल के बड़ी करीब है ये वाली टॉक. स्पॉट इंस्टेंसेस शुरू में हमने पैसे बचाने के लिए यूज़ किए थे येल्प में, बट यहाँ पे आके हमने पैसे बचाने के लिए तो किए थे. मेरा CEO खुश होता था कि यार पैसे बच रहे हैं, बट मैंने इसलिए किए थे कि इफ़ यू वांट टू राइट रिलायबल एप्लीकेशंस यू हैव टू यूज़ अनरिलायबल हार्डवेयर. तो मैं हर जगह लोगों को ये कहता हूँ यार कि द बेस्ट वे टू राइट गुड सॉफ्टवेयर इज़ टू यूज़ अनरिलायबल हार्डवेयर. तो विच इज़ वेरी काउंटर इंट्यूटिव, बट एक कंपनी ग्रेमलिन के नाम से वो यही करती है. हाँ बिल्कुल. मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जब शुरू के ये POCs चल रहे थे तो मेरा CEO कहता था कि भाई खुदा का वास्ता है ये टूके तू बाद में बना ली, हमें कस्टमर जीतने दे, तू अभी सही मशीनें लगा इनके ऊपर. बट आई थिंक दैट इज़ शॉर्ट साइटेडनेस. यू शुड यूज़ स्पॉट इंस्टेंसेस बिकॉज इट मेक्स योर. अब ग्रेमलिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ
Gremlin is a startup which is doing Chaos Monkey as a product.